और अगले 100 जन्म भी अगर मेरे को दोबारा से मौका मिलता है या मेरे से आप पूछेंगे कि आप क्या ज्वाइन करना चाहेंगे, तो मेरे को जितनी बार भी मौका मिलेगा मैं आर्मी ही ज्वाइन करना चाहूंगा, क्योंकि वो जो यूनिफॉर्म पहनने से जो चार्म और जो फीलिंग अंदर से आती है, वो शायद मैं अगर प्रधानमंत्री भी बन जाऊं, शायद मुझे वो फीलिंग नहीं आएगी। तो इस वीडियो में जिनका हम इंटरव्यू लेने वाले हैं उनका नाम है कर्नल अमरदीप सिंह, सेना मेडल, जो कि एक रिटायर्ड ऑफिसर भी हैं। तो सर एक एक्स एनडीए भी रह चुके हैं और सर 1993 बैच के इन्फेंट्री ऑफिसर भी हैं। सर ने जम्मू कश्मीर में जहाँ पे उनके 3 टेन्योर थे, कुपवाड़ा, सियाचिन ग्लेशियर और नागरोटा में सर्विस दी है। सर ने यूनाइटेड नेशन मिशंस में इथियोपिया और एरिट्रिया में भी सर्विस दी है, जो कि अफ्रीका में आता है, और सर ने मणिपुर में भी सर्विस दी है। और ये सब जगह पे सर को अपनी बटालियन को कमांड करने के लिए सेना मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज का अवार्ड मिला। कर्नल अमरदीप सर ने 3 प्रेस्टिजियस इंस्ट्रक्शनल असाइनमेंट्स पे काम किया है। जो पहला है वो है इन्फेंट्री स्कूल मऊ, जहाँ पे सर ने काम किया 1999 से 2000 तक। जो दूसरा है वो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, जिसको हम IMA भी कहते हैं, जहाँ पे सर ने 2005 से 2008 तक काम किया। और जो आखिरी है और जो तीसरा है वो है आर्मी वॉर कॉलेज मऊ, जो 2014 से 2017 तक सर ने जहाँ पे काम किया। और यहाँ पे सर ने टोटल 8 ईयर्स काम किया। और यहाँ पे सर ट्रेनिंग देते थे ऑफिसर कैडेट्स को और ऑफिसर्स को। इंडियन आर्मी के 3 सर्विसेज के जो ऑफिसर्स आते थे उनको। तो जो पहला है वो है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस, और जो ऑफिसर्स आते थे फ्रेंडली नेबर कंट्री से उनको, और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं सर उनको भी ट्रेनिंग देते थे। और सर ने फिर उसके बाद 25 ईयर्स की सर्विस के बाद आर्मी से प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि सर को जो उनका मेंटोरिंग का और राइटिंग का पैशन था उसको भी फॉलो करना था। तो सर के क्रेडिट में अभी 5 बुक्स हैं। और सर को 2017 में आर्मी कमांडर्स स्कॉलर वॉरियर बैच का अवार्ड भी मिला उनके रिसर्च पेपर्स के लिए। और अभी सर की एक एकेडमी है द विनिंग एज, जहाँ पे सर चीफ कंसल्टेंट हैं। So, join to all of you, and also a very warm welcome to our YouTube channel, All Purpose Tutorials. I am Ritik Tiwari, and today here we are to conduct an interview with an Indian Army officer. So, let's welcome Colonel Amardeep Singh sir, Sena Medal. Yeah, can you see me? Thanks, Ritik. Okay, sir. Yes, sir. I can see you properly now, and you are audible too. Okay, sir. Yeah. So, and sir, once again, sir, thank you so much for coming on our channel and sir sharing your experiences with us, sir. It's an honor for us, sir, to interact with our Yeah. officer like you, sir. No, it's very nice to talk to young people, and I just hope that this talk and this interview is able to motivate some boys and girls to join the defense forces, and also gives you a very accurate picture of the armed forces and life in the army. Yes, sir. It surely will, sir. It is going to help a lot of defense aspirants, sir. So, sir, now can we start the session, sir? Yeah, please do. Yes, sir. So, sir, as I told everyone in the beginning only, that you are an ex-NDA cadet. So, when you got selected for NDA, so, sir, what were the things that you were expecting? And also, when you reached there, was it different? Sir, was it different from your expectations, or it was the same that you were expecting? See, I come from a civil background, and I had no idea about the armed forces and the training, though I belong to Dehradun and there is Indian military academy here. But certainly when you are in school, you can only see from outside. We used to go to the market and see the gentlemen cadets in the market, and we used to even only dream, can we be like them or not? Yes, sir. NDA is a entirely different
entity or institute where nobody actually knows how things will be. Even now, people who are appearing for written exam and going for SSB have very little idea about how the life will be in India. Yes. And same was for me. I used to think that for studies we'll go to some college in Pune, and for military training we'll stay in India. But to my horror and shock, I realized that academy at that time, even now, any military academy for a common person from a civilian background will look like seem to be a very glorified jail kind of thing. You can't even go out. There's so many restrictions on your daily life, and on top of that, the expectations of the organization as far as the physical fitness is concerned, as far as the other skills are concerned, are too high. आपको स्विमिंग आना चाहिए, आपको 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पहले हफ्ते में दौड़ना पड़ सकता है, आपको बेंच स्ट्रेच करना है, आपको रोप करनी है, आपको हमें कुछ भी नहीं आता था, स्विमिंग नहीं आती थी. आई वाज अ डेड सिंकर व्हेन आई जॉइंड इंडिया. सो इनिशियल 10-12 दिन बहुत ज्यादा तंग रहता है बंदा, कई कुछ लोग उससे भी ज्यादा समय तंग रहते हैं, एंड आपकी सारी हड्डियां दर्द कर रही होती हैं, ऑल मसल्स आर डिस्टिंग एंड यू आर नॉट एबल टू कैच अप विद योर स्लीप. आपको घर की याद आती है. Right now, तो mobile phones etc. are there, though they are not permitted in the academy, but certainly connectivity level is much better. हमारे टाइम पे तो we used to मतलब die waiting for मम्मी की चिट्ठी आएगी, इसका letters were the only means of communication. Yes, so one is actually, I must say, one is never prepared for a institute like a military academy, mentally and psychologically and physically. अगर आप आर्मी में या एनडीए में या आईएमए में जाने की सोच रहे हैं, सो अभी आपको टाइम है. आई वांट टू शेयर विद द लिसनर्स दैट आप अपने को फिजिकली बहुत फिट रखें. आर्म्स जो है, जिम में जाके वेट्स उठाने से नहीं होगा. पुलअप कीजिए, आप पुशअप कीजिए, आप क्रंचेस कीजिए, आप दौड़िए, कम से कम 10 किलोमीटर स्पीड से भागना है, एंड स्टे फिजिकली शिफ्ट, स्टे फिजिकली ट्यून, एंड देन अदर थिंग्स. अगर आपके पास टाइम है, ज्वाइन स्विमिंग क्लासेस, बिकॉज स्विमिंग आसानी से नहीं सीख सकता है बंदा. yes sir. राइडिंग में नहीं कर रहा, राइडिंग एकेडमी में सिखा देंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें विच आर न्यू सब्जेक्ट लाइक ड्रिल, जो परेड जिसे कहते हैं आप लोग, तो ड्रिल इज अ वेरी टफ सब्जेक्ट, और बहुत ज्यादा वहां पर आदमी को हरास होता है, और जो नया आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं तो हरासमेंट बहुत ज्यादा लगता है और तंग भी होता है बंदा. लेकिन अच्छी बात यह है हर मिलिट्री एकेडमी की कि कोई भी चीज आप अकेले नहीं करते. एवरीथिंग इज डन एज पार्ट ऑफ ग्रुप. और वहां जाके आपको अपने दोस्तों की वैल्यू पता लगती है. कुछ लोग सैनिक स्कूल से आए थे, कुछ आरएमसी से आए थे, एंड देयर वर सो मेनी पीपल हु आर वेरी वेरी गुड. तो हम जैसे लोग जो बिल्कुल सिविल बैकग्राउंड से आए थे, हु आर नॉट फिजिकली अप टू द मार्क, हमें हमारे ग्रुप में हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने मोटिवेट किया और अपने साथ लेके बहुत कुछ सिखाया. एंड अल्टीमेटली आई पास्ड आउट विद माय कोर्स, एंड नाउ आई एम एज गुड और एज बैड एज एनीबडी कैन बी, हैविंग been through so many years in the army. But certainly expectations of the organization are very high. It is not that कि आपने written exam clear कर लिया और आपने SSB clear कर लिया, medical clear कर लिया तो आप एनडीए से पास आउट हो जाएंगे. एनडीए के जो 3 साल हैं, they are going to be very tough, and rightly so, because आर्मी की जो ट्रेनिंग है उसको हम डाइल्यूट नहीं कर सकते. बिकॉज जब मैं ग्लेशियर पर था, सियाचिन में था, तो -50 डिग्री सेल्सियस पे हम रह रहे थे. सो मुझे लगा कि मेंटली ये इतना और दिन रात एनिमी के साथ फायर एक्सचेंज होता था, बहुत नजदीक हमारी पहुंचती, दिन भर गोलियां चलती थी, तो मुझे कभी डिस्टर्बिंग नहीं लगा. मैं तो मुझे लगा कि ठीक है, मेरा काम है. वो जो टफनेस है, वो जो साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है, आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग जो अकेडमीज है वो कराती है. और आपको एक आम आदमी से, एक आम लड़के से एक सुपर ह्यूमन टाइप का आपके अंदर क्वालिटीज ये अकेडमी डेवलप करती है. बट सर्टेनली इट इज नॉट इजी, it is not undoable, it is not impossible, but it is very difficult, and you have to have your focus correct. अगर आप mentally weak हैं, psychologically weak हैं, तो उस पर काम करें, तभी आप मिलिट्री ट्रेनिंग कर सकते हैं. या ओके सर. सो सर, आपने जैसा बताया कि सर माइंडसेट सर इसके लिए बहुत ज़रूरी है. अगर हम माइंडसेट भी बना लेते हैं और सर अगर हम फिजिकली थोड़ा सा अनफिट हैं, तो सर क्या हो जाता है कि सर फिजिकली सर बहुत फिट होना चाहिए या फिर इधर जाने के लिए? एब्सोल्युटली. तो फिजिकली ऐसा है कि हमारी बॉडी जो है वो बहुत उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है. yes, जब मैं कमीशन हो गया, आर्मी में इन्फेंट्री में चला गया, तो हमारे लिए इन्फेंट्री ऑफिसर्स के लिए कमांडो कोर्स कंपलसरी होता है. और कमांडो कोर्स के अंदर आप देखेंगे आजकल तो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर होती है.
हमारे टाइम पे 20, 30, 40 होता था। तो कोर्स के शुरू होने के 20वें दिन आप 23 केजी वेट लेके 20 किलोमीटर भागेंगे, 30th डे आप 30 किलोमीटर भागेंगे और 40th डे आप 40 किलोमीटर भागेंगे। और जब अगर देखा जाए टाइमिंग वाइज तो 20 किलोमीटर रन बहुत टफ होती है। अभी भी मैं मैराथन रनर्स को जब पहले सोचता था कि कैसे 40 किलोमीटर इकट्ठा भाग ले, लेकिन जब आप कमांडो कोर्स करने गए तो आप न केवल 40 किलोमीटर भागे हैं, आप 23 केजी वेट लेके भागे। टाइमिंग ज्यादा होती है, 5 घंटे 40 मिनट के करीब टाइम होता है 40 किलोमीटर करने का, लेकिन वो बहुत ज्यादा भी नहीं लगता है। वो वेट बहुत ज्यादा होता है, 18 किलो का आपके पास रेत की बोरी लदी होती है, पिट्ठू होता है, और 5 किलो की राइफल होती है। तो उस लेवल का फिजिकल फिटनेस आर्मी आपसे एक्सपेक्ट करती है, और बिल्कुल सही एक्सपेक्ट करती है। तो जो लोग साइकोलॉजिकली वीक है, शरीर आपका और मेरे शरीर में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन आपके और मेरे दिमाग में बहुत अंतर आ जाता है, क्योंकि मैंने मिलिट्री ट्रेनिंग किया है, मैंने सर्विस किया है। और आजकल के जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, उसमें एनर्जी की कमी नहीं है, उनमें इंटेलेक्ट की कमी नहीं है, लेकिन फोकस की कमी है, और जो मेंटल टफनेस की कमी है। तो जो भी मिलिट्री एस्पिरेंट्स हैं, डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, इस बात को सीरियसली लेना है कि हमें एक बहुत अजीब तरीके की, बहुत ही अलग तरीके की फिजिकल फिटनेस एक्सपेक्टेड होती है। मैं अभी इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, हर बंदा पैरा कमांडो दिखना चाहता है, मरून बेरे पहनना चाहता है। Yes, sir. तो वो देखिए, सोचने के लिए और उसके लिए बहुत अच्छा लगता है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप देखिए कि नॉर्मल एक इन्फेंट्री सोल्जर के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट इतनी टफ है, तो पैरा कमांडोज को तो और 10 गुना मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना वो होता है। तो हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब सिविलियन थे आर्मी ज्वाइन करने से पहले। तो दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। एक तो ये कि इम्पॉसिबल नहीं है, और दूसरा ये कि इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप आज फोकस करेंगे, आज डिसाइड करेंगे, और धीरे धीरे आपका स्टैमिना बिल्ड होगा। एक दिन में आप 40 किलोमीटर मत भागे, Yes, लेकिन sir. आज अगर 5 भागते हैं, अगले हफ्ते आप 6 किलोमीटर भागिए, उसके अगले 7 भागिए, और विद इन 2 months यू शुड बी एबल टू रन से 10 to 12 किलोमीटर एट अ स्ट्रेच। और Yes, sir. इस तरह से अगर आप आज 10 पुशअप करते हैं, कल 20 कीजिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि इकट्ठे 100 करने, लेकिन आप दिन में 5 बार 20 या 30 पुशअप के 3 सेट कीजिए, फिर 4 सेट कीजिए, फिर 5 सेट कीजिए। ऐसे पुलअप है, आज आप करेंगे, बीम पे लटकेंगे, बार पे लटकेंगे, तो 1 या 2 पुलअप्स होंगे। तो आपने कोशिश करना है कि क्या मैं 7-8 बार अपने बॉडी को, अपना बॉडी वेट खींच सकता हूँ कि नहीं खींच सकता। सिमिलरली जो स्टमक एक्सरसाइजेस है, सिटअप्स हैं, या क्रंचेस जिसे कहते हैं Yes, आजकल sir. की भाषा में, वो करना बहुत जरूरी है और बहुत आसान है। आप 10 से शुरू करेंगे, और 2-3 महीने के समय में आप अगर 50-60 क्रंचेस कर पाते, इकट्ठे नहीं कर पाते, तो 20-20 के 3 सेट करिए, 20 के 4 सेट करिए। ऐसे नंबर ऑफ सेट्स को आप बढ़ाते रहिए। और स्विमिंग जैसा मैंने बताया सीख लीजिए, दौड़ना आप अपने प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये सब चीजें हैं, जब आप एकेडमी में ज्वाइन करते हैं तो आपको एडवांटेज मिलेगी, आपको फिजिकल जो है मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी। Okay. Clear? Yes, sir. या Sir, my next question to you is, sir, I have heard that when you enter in NDA, IMA or OTA, so there your seniors are waiting for you to give you a good welcome by Ragada, sir, what we call it, sir. We call it out of the NDA or IMA or OTA ragging, but inside NDA or OTA or IMA, we call it Ragada, sir. So did you also got a welcome like that, or it was just normal, sir? Like we enter there and everything. see, firstly, in civil colleges, medical colleges, engineering colleges, the initial ice breaking has to be done. Some people do it to extremes, and it is called ragging. Yes, सो एनडीए में रैगिंग नाम की कोई चीज नहीं होती। आप गए, आज मैं पहुंचा हूं, और शाम को जो सीनियर्स है उन्होंने बोला भाई पूरी स्क्वाड्रन का 10 मीटर जंप है, तो मेरे को तो हाइट से जंप करने से बहुत डर लगता है। yes, sir. तो वहां पर एस्केप नहीं है, वहां पर सारी चीजें आपने करनी है। प्लस जो आप फिजिकली वीक है, तो शाम को जब डिनर के बाद आएंगे तो आपको कोई सीनियर है वो रन के लिए दे जाएगा, कोई सीनियर बेंच स्ट्रेच करा रहा है, आप उससे बच नहीं सकते। आप Yes, उसको sir. रैगिंग कह लीजिए, आप उसको रगड़ा कह लीजिए, आप उसको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कह लीजिए। लेकिन अल्टीमेटली एनडीए जैसी जगह पे, मिलिट्री अकेडमी जैसी जगह में मैंने देखा है कि जो रैगिंग नहीं होती है, जो रगड़ा जिसे कहा जाता है, ये शायद हमें एक दूसरे को आपस में जोड़ने का बहुत बड़ा काम करता है। और आपकी जो वीकनेसेस हैं, आपको उस पर काम करने का टाइम मिलता है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे हमारे पास
स्क्वाड में कई बहुत अच्छे सीनियर्स थे, वो एक्चुअली वर वरीड कि भाई अमरदीप आपसे पीटी टेस्ट पास हो गए कि नहीं, क्योंकि हर एक एनडीए की टर्म में या आईएमए की टर्म में आपको एक क्वालिफाइंग टेस्ट पास करने होते हैं, ओनली देन यू गो टू द नेक्स्ट टर्म, अदरवाइज आप रिलीगेट हो जाएंगे या विड्रॉ हो जाएंगे अकेडमी से। सो सीनियर्स का काम है आपको जल्दी से जल्दी वो टफनेस की तरफ लेके जाना। Yes, कुछ sir. लोग एक्सट्रीम पर चले जाते थे, अभी भी जाते होंगे पक्का, लेकिन जिस तरह से आउटसाइड कॉलेजेस का हम सुनते हैं कि रैगिंग हो रही है, आपको कपड़े उतार के आपके साथ हैरेसमेंट हो रहा है, ऐसा कुछ मिलिट्री एकेडमीज में नहीं होता है। मिलिट्री एकेडमी Yes, होता है sir. ओके अमरदीप 100 बेंच प्रेसेस करो, तो वो आप उसको रगड़ा कह लीजिए, या अपनी साइकिल उठाओ और दौड़ के आ जाओ, तो आप उसको रैगिंग कह लीजिए। लेकिन मुझे लगा कि मेरे जैसा जो बंदा फिजिकली बहुत ज्यादा फिट नहीं था जब ज्वाइन किया एकेडमी में, और 3-4 महीने बाद मैं 2 या 3 साइकिल उठा के भी दौड़ जाता हूँ। Yes, या sir. हम लोग लंच करके आते थे तो बाहर स्क्वाड में टाइल्स जो है बहुत गर्म हो जाते हैं, हीट सेशन बोलते हैं उसको, तो आपको बोला जाए इन टाइल्स के ऊपर बेंच स्ट्रेच करिए, हाथ भी जलते थे, पैर भी जलते थे, फ्रंट रोल करो, ये करो, लेकिन अल्टीमेटली वो साइकोलॉजिकली आपको बहुत टफ बना रहा है। सो वो सब चीजें एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू योर गेटिंग फिजिकली एंड मेंटली टफ, दैट इज हाउ आई टेक इट। एंड ये कहना कि अमरदीप जी कोई स्पेशल आदमी है, एनडीए में कोई थाली लेके वेट कर रहा है, ऐसे कुछ नहीं होगा। आज भी जो भी ज्वाइन करेगा उसका ट्रीटमेंट वैसे होगा, बिकॉज दैट इज हाउ थिंग्स शुड बी इन अ मिलिट्री एकेडमी। और होता क्या है, हर एक टर्म की अलग प्रिविलेज है। जैसे हम जब सेकंड टर्म में गए तो हम एक टोस्ट पे ब्रेड और जैम लगा के नहीं खा सकते। आपको अगर ब्रेड पे बटर लगाना है तो बटर, और जैम लगाना है तो दूसरे टोस्ट पे करना पड़ेगा। जब आप थर्ड टर्म में जाएंगे तो आपको प्रिविलेज मिलेगा, ओके यू कैन अप्लाई बटर एंड जैम ऑन द सेम टोस्ट। लगता बड़ा स्टूपिड है, बड़ा बचकाना सा है, लेकिन आपको लगता है कि हर चीज की, हर टर्म की प्रिविलेजेस हैव टू बी अर्न्ड। Yes, जब हम sir. फर्स्ट टर्म में गए तो सब लोगों को मूछें अपनी शेव करनी पड़ती हैं, और आप मूछें तभी रख सकते हैं जब ड्रिल टेस्ट पास हो जाए। सो एनीबडी जिसकी मूछें होंगी, तो जो बेचारे कभी मूछें नहीं भी रखते थे, उन्होंने भी ये दिखाने के लिए कि मेरा ड्रिल टेस्ट पास हो गया, वो मूछें रखते थे। आपका जाके वहां कटोरा कट हो जाता है, बिल्कुल जीरो कट बोलते हैं, आपके सिर के सारे बाल उड़ जाते हैं। तो अभी जो कई लड़के हैं ऋतिक रोशन टाइप के बाल रखे घूमते हैं, उनके Yes, लिए sir. बड़ा शौक लगता है कि ये हम कहाँ आ गए। लेकिन दैट इज द मिलिट्री वे। पूरे विश्व में भी जहां पर भी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, इस तरह का सीनियर्स का बिहेवियर, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर रहेगा और रहना चाहिए, बिकॉज दैट एक्चुअली मेक्स यू अ डिफरेंट पर्सन। Yes, sir. सर उससे डिसिप्लिन आता है सर, सब यूनिटी भी दिखाई देती है सर उससे, बिल्कुल अगर सब एक बिल्कुल से आता जुड़ते है, हैं। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। अभी हम अपने एक्स एनडीए सीनियर्स हैं या आईएमए के सीनियर्स हैं, उनसे मिलते हैं और वो दिन याद करते हैं और हंसते हैं एक दूसरे के साथ में मिलके। सो ये लाइफ लॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं, आप भूलते नहीं है। अब मेरे से कोई 3 साल सीनियर भी है, वो अभी मिलेंगे, हम वैसे ही दोस्तों की तरह बातें करते हैं जैसे वहां पर थे। एकेडमी में डिफरेंसेस होते हैं, वो सीनियर है हम जूनियर है, लेकिन बाद में जाके ये सब आपको बहुत अच्छा, जो यूनिटी शब्द आपने इस्तेमाल किया, बहुत जरूरी है आर्म फोर्सेस की। Yes, sir. या So, sir, my next question for you is, sir, that you also took the premature retirement from the army, and Yeah. then, sir, you decided to, sir, then how you decided to take this retirement, and sir, why you decided to take this retirement, sir? Because you can do the service, sir, if you want to, but if you take retirement, that you also do by your choice only, sir. See, some reasons are very personal, Yes, and sir. some reasons I had a very major back injury. I was operated in 2014, Yes, और sir. मैं बहुत ज्यादा भागता था, रोड रनिंग बहुत करता था, तो स्लिप डिस्क हो गया एंड आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड एंड आई वाज बेड रिडन फॉर ऑलमोस्ट 2 years। एंड मिलिट्री डॉक्टर्स ने मेरे को ठीक किया, फिर मैं 15 किलोमीटर वॉक कर लेता हूँ दिन में। तो वन ऑफ द रीजन वाज दैट आई वाज नॉट कीपिंग मेडिकल स्टैंडर्ड्स एज फार एज माय आर्म वाज कंसर्न, दैट इज इन्फेंट्री। मेरे सर्जरी के बाद में मुझे हाई एल्टीट्यूड में जाना अलाउड नहीं था, कोल्ड क्लाइमेट में जाना अलाउड नहीं था, दौड़ना अलाउड नहीं था, वेट उठाना अलाउड नहीं था। तो मुझे लगा कि व्हाई शुड आई बी अ लायबिलिटी ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, सो आई डिसाइडेड टू स्टेप आउट। क्लियर। एंड सेकंड वाज आई वांटेड टू डू सो मेनी थिंग्स एज अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल। ऑर्गेनाइजेशन की, कंट्री की बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं आपके ऊपर, बिल्कुल सही होती है वो रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि हम एक बहुत जिम्मेदार काम कर रहे हैं। Yes, sir. मुझे किताबें लिखना था, मुझे मीडिया में, टीवी पर आना था, मुझे रेडियो प्रोग्राम करना था। अगर मैं सर्व करता रहता तो शायद मैं वो नहीं कर पाता। और दूसरी चीजें, मुझे जैसे आप बहुत यंग हैं, आप जैसे जो अगली जनरेशन है उनसे शायद बात करना था, उनको मोटिवेट करना था।
Yes, ये भी उतना फ्रीली नहीं कर पाता. So it is a very wise decision that I took. And yes, I could have carried on in the army for next 8 to 9 years, maybe 10 years, maybe more. But I decided to take a break. Now I have set up my own academy at Dehradun, as you had yes, mentioned, sir. the Winning Edge. Yes, And sir. now we are preparing candidates for all entrance exam and SSB. Plus, my company is doing a whole lot of other things. Yes, So, sir. whatever I've learned in the armed forces is what I'm now applying. वही डिसिप्लिन है, वही काम करने की तरीका है, वही लॉजिक है. एंड आई फाइंड माई सेल्फ डूइंग क्वाइट ओके इन द सिविल लाइफ ऑल्सो. एंड आई गॉट लॉट ऑफ टाइम टू माई सेल्फ. आर्म फोर्सेज में, किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में पर्सनल टाइम बहुत कम मिलता है. आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट बहुत होती है और आपको अलग अलग जगह पर जाके सर्व करना पड़ता है, अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है. तो एक फायदा यह है कि मैं अपनी फैमिली के साथ रह सकता हूँ, पेरेंट्स को लुक आफ्टर कर सकता हूँ और आप लोगों से बात कर सकता हूँ, लिख सकता Yes, हूँ. sir. तो ये सब चीजें. एंड जो मेरे बैचमेट्स हैं, अभी ब्रिगेडियर्स हैं, थोड़े दिन बाद वो जनरल्स बन जाएंगे. सब लोग अच्छा कर रहे हैं. और मुझे, मेरा ये मानना है कि आर्मी से जो भी मैंने सीखा है वो मैं अगली पीढ़ी के साथ, इफ आई एम एबल टू शेयर, then I would have done justice to what I have learned in the army, and I'll keep doing that. And army Yes. is a very fine organization. Army means armed forces, जो एक सबसे अलग टाइप का एनवायरमेंट है, जो आपको कहीं भी नहीं मिलता है. तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम आर्मी से सिविल में लेके आए, अभी उसको हम यूज कर रहे हैं. एंड आई फील वेरी प्राउड. यू आर अ कर्नल, तो कर्नल की रिस्पेक्ट तो आपको चाहे रिटायर्ड है चाहे सर्विंग है, सेम रिस्पेक्ट मिलती है आपको. सोसाइटी बहुत हाँ, अच्छे सर. अलग तरीके से देखती है. सो वो अच्छा भी लगता है हमें. और बहुत कुछ है जो मैं करना चाहता था, इसलिए मेरा पर्सनल रीजन है. ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कभी ऐसा प्रेशर नहीं है कि आप जाइए छोड़िए, ऐसा कुछ नहीं है. मुझे हाँ, सर, यूनिफॉर्म वो पहनना तो बहुत अच्छा लगता था, अभी भी लगता है. और अगले 100 जन्म भी अगर मेरे को दोबारा से मौका मिलता है, या मेरे से आप पूछेंगे कि आप क्या ज्वाइन करना चाहेंगे, तो मेरे को जितनी बार भी मौका मिलेगा मैं आर्मी ही ज्वाइन करना चाहूंगा. क्योंकि वो जो यूनिफॉर्म पहनने से जो चार्म और जो फीलिंग अंदर Yes, से sir. आती है, वो शायद मैं अगर प्रधानमंत्री भी बन जाऊं, शायद मुझे वो फीलिंग नहीं आएगी हाँ, सर, वो जो कि यूनिफॉर्म एक में. सिपाही बनके जो यूनिफॉर्म का चार्म है. आई डोंट थिंक उससे बड़ी कोई चार्मिंग चीज हो सकती है. स्पेशली मेरे लिए आजकल की जो जनरेशन है, वो यूनिफॉर्म को बहुत बड़े रिस्पेक्ट से देखते हैं, बड़े उससे देखते हैं. एनवी भी होता है Yes, लोगों sir. को, क्या रे यार कोई यूनिफॉर्म पहने. और बहुत अच्छा लाइफ आर्मी की. Yes, sir. या Sir, and sir, I am also an NCC cadet. So, sir, we do not work hard like, sir, the army soldiers, sir. But, sir, we have also got a lot of ragda, and sir, when we wear that uniform, and sir, when we go out, so, sir, people give us, sir, so much respect. So, sir, then we feel, sir, very proud, sir, and that also motivates वेरी us नाइस. to एब्सोल्युटली, do. एब्सोल्युटली. Yes, sir. Because, sir, that या uniform makes us something different, sir, from all the others एब्सोल्युटली. out there, sir. बिल्कुल, बिल्कुल. आई टोटली एग्री विद यू. Sir, या sir, my next question is, sir, and sir, you also have had 3 prestigious instructional assignments at the Infantry School Mau from 1999 to 2000, IMA Dehradun from 2005 to 2008, and Army War College Mau from 2014 to 2017. So, sir, how you were assigned with the prestigious assignments, and also tell us about your experience while working in these assignments. ओके. आर्मी में जो ट्रेनिंग है वो चलता ही रहता है. एट एवरी स्टेज, एट एवरी रैंक, एट एवरी अपॉइंटमेंट, यू आर सपोज टू बी ट्रेन फॉर दैट जॉब. सिविल डिपार्टमेंट्स में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नहीं होती है. यस, उनके सेमिनार्स होते हैं, उनकी टॉक्स होती है, एंड जनरली ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है. लेकिन आर्मी का जो जॉब है वो बहुत ही स्पेशलाइज जॉब है, क्योंकि वहां पर या तो आप जान दे रहे हैं अपनी, या किसी की ले रहे हैं जान, विच इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कमिटमेंट एज फार एज आई एम कंसर्न. आप फाइल्स पढ़ सकते हैं, आप एकेडमिक रिसर्च कर सकते हैं. हर एक जॉब रिक्वायर्स डेडिकेशन. तो आर्मी का जो डेडिकेशन है वो थोड़ा अलग तरीके का होता है. I rate army very high. Reason is, firstly, I am an army man myself, Yes, and sir. second is, no other job will require you to lay down your life. आपको मरने को कोई जॉब नहीं कहेगा कि आप HDFC बैंक ज्वाइन कीजिए और अपनी जान दे दीजिए, ऐसा नहीं होता. Yes, लेकिन sir. आर्मी में आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है, जब हम कसम खाते हैं कि मैं अपनी जान की, प्राणों की परवाह किए बिना देश की सीमाओं की रक्षा करूंगा, ये हम कसम खाते हैं.
ठीक है कि नहीं है? Yes, sir. जैसे आप एनसीसी में ओथ लेते हैं कि मैं तन मन धन से देश की सेवा करूंगा, डिसिप्लिन नागरिक बनूंगा, बहुत अच्छा है। Yes, लेकिन sir. आर्मी जब आप ज्वाइन करते हैं तो हमारे जवान भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं, जब आईएमए में आप कमीशन होते हैं तो आप कसम खाते हैं कि मैं सभी जो ऑर्डर्स हैं गवर्नमेंट के और अपने ऊंचे अधिकारियों के, उनका पालन करूंगा और अपने देश की रक्षा में अपनी जान भी देने से नहीं हिचकूंगा। Yes, sir. अब जब ये एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, एक तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी हो गया, इसको हम बोलते हैं प्री कमीशन ट्रेनिंग। कमीशन होने से पहले की जो ट्रेनिंग है इसको प्री कमीशन ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट बोलते हैं। और हर एक आर्म और सर्विस के अपने अपने ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट। तो कुछ लोग जैसे सीएमई पुणे है, वो इंजीनियर्स जो हैं उनके ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कराते हैं। स्कूल ऑफ आर्टिलरी है, वो आर्टिलरी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कराता है। उसी प्रकार से जो इन्फेंट्री स्कूल है, वो इन्फेंट्री स्कूल इन्फेंट्री में जवानों की, एनसीओस की और ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए जिम्मेदार है। तो इन असाइनमेंट्स के लिए चुने जाने के लिए आपको आर्मी के दौरान, हम भी जब कोर्स करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो आपने उन कोर्सेज में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। सो मेरे को खुशी है कि मैंने इन कोर्सेज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मेरी बटालियन ने मुझे बहुत अच्छा तैयार किया, मेरे दोस्तों ने कोर्स में से बहुत मदद की, हमारी यूनिट के जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे जिन्होंने इन कोर्सेज की तैयारी कराई, उन्होंने बहुत मेहनत करी। तो मुझे इंस्ट्रक्शनल ग्रेडिंग मिला और उस हिसाब से मैं सबसे पहले 1999 में इन्फेंट्री स्कूल में पोस्टिंग है। एमएमजी मीडियम मशीन गन और एजीएल होता है, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, वो एक एमएमजी एंड एजीएल ग्रुप है। तो जब आप इंस्ट्रक्टर होते हैं तो आप अपने जूनियर्स को ट्रेन करते हैं। Yes, sir. जैसे हम जब कोर्स करते हैं, हमारे सीनियर्स वहां पर इंस्ट्रक्टर थे, तो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अपॉइंटमेंट है और बहुत प्रेस्टिजियस काम करने का मौका मिलता है आपको, जवानों को, ऑफिसर्स को ट्रेन करने का मौका मिलता है। तो उसके लिए एक रिक्वायरमेंट था कि आपको एकेडमिक्स में अच्छा करना है, आपको इन कोर्सेज में इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग लेना है, दैट इज वन। सो यू हैव टू डू योर जॉब वेरी सीरियसली। Yes, sir. जब वहां जाते हैं तो इट इज वेरी प्रेस्टिजियस पोस्टिंग और आप एंजॉय करते हैं, आप ट्रेन करते हैं उन वेपन्स को। जैसे मैंने अपने 1.5-2 साल मैं वहां पर रहा इन्फेंट्री स्कूल में, बीएसएफ को ट्रेन किया ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर में, उनके लिए 1 महीने का स्पेशल कार्टर रन किया, नया हथियार आया था एजीएस, जो एजीएल का नेक्स्ट जनरेशन है। तो बहुत अच्छा लगता है। बड़े डेलीगेशंस को हमने अटेंड किया, बहुत सारे ट्रायल्स में हिस्सा लिया, तो दैट इज वेरी गुड। सेकेंड मेरा पोस्टिंग हुआ 2005 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। एंड जैसे इन्फेंट्री स्कूल तो हमारा इन्फेंट्री का एस्टैब्लिशमेंट है, आईएमए है वो ऑल आर्म्स है। ऑल आर्म्स मींस उसमें सब आर्म्स से, आर्मी के सभी अंगों से ऑफिसर्स आते हैं और वहां पर आने के लिए आपको अपनी आर्म में बहुत अच्छा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। Yes, sir. यहाँ पर आपको कैडेट्स को ट्रेन करने का मौका मिलता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा सेक्रेट काम या इससे ज्यादा खुशी का काम किसी के लिए हो सकता है कि आप जो भविष्य में अफसर बनने वाले हैं उनको ट्रेनिंग कराएंगे। और मैं कंपनी कमांडर था, उसका अपना रोल होता है। लेकिन आप ये देखें कि जैसे इस इंटरव्यू के द्वारा बहुत लोग मेरे को सुनेंगे, बहुत लोग हमारी बातचीत सुनेंगे, Yes, कुछ sir. लोग उससे सीखेंगे, कुछ लोग मोटिवेट होंगे। तो आप जब कंपनी कमांडर होते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप कुछ भी ऐसा ना करें जिससे हमारे आने वाले ऑफिसर्स कुछ गलत लेसन लें। आपको बहुत अच्छा होना पड़ता है। जो गुरु द्रोणाचार्य ने शायद काम किया था पांडवों के साथ, कौरवों के साथ में उनको ट्रेन करने का, तो जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं आर्मी के अंदर, इनके ऊपर वही जिम्मेदारी होती है कि बहुत अच्छे ऑफिसर्स ट्रेन करें। केवल फिजिकल फिटनेस नहीं, मिलिट्री सब्जेक्ट्स में, मॉरल कंडक्ट में, बातचीत में, कम्युनिकेशन में, तो बहुत सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे एनडीए में जब हम थे तो 29 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं 3 साल में। ऐसे आईएमए के अंदर भी बहुत सारे मिलिट्री सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाने का मौका मिलता है, दूसरी आर्म्स के ऑफिसर से बातचीत करने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। और एक बहुत सुंदर आईएमए अगर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कितनी सुंदर एकेडमी है और कितनी फैसिलिटीज हैं वहां पर। तो वो बहुत प्रेस्टिजियस वो है। एंड आई एंजॉयड माई टेन्योर एट इन्फेंट्री स्कूल एट इंडियन मिलिट्री एकेडमी। और बहुत यंग ऑफिसर्स और जीसीस के साथ रह के आप भी जवान हो जाते हैं, आप भी यंग हो जाते हैं और बहुत अच्छा हुआ है। वॉर कॉलेज जो है, वॉर कॉलेज एक बहुत बड़ा एस्टैब्लिशमेंट है और अगेन वो भी ऑल आर्म्स है। वहां पर हम सीनियर ऑफिसर्स को ट्रेन करते हैं। जूनियर कमांड विंग है, जो जूनियर ऑफिसर्स होते हैं, जो कंपनी कमांडर्स हैं उनके लिए। जो सीनियर कमांड विंग है वो सीईओज के लिए है। और एक हायर कमांड विंग है, जब कमांड आदमी खत्म कर लेता है एक ऑफिसर बटालियन की, अपनी रेजिमेंट की, तो उसके बाद उनको हायर कमांड पोस्ट हम कराते हैं ताकि उनको और सीनियर अपॉइंटमेंट्स के लिए रेडी कर सकें।
तो वॉर कॉलेज में स्कॉलर वॉरियर, जैसे आपने एक टर्म यूज किया था स्कॉलर वॉरियर, हम Yes. चाहते हैं कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो केवल वॉरियर्स ना जाए, वो केवल लड़ाई में वो ना हो, स्कॉलर भी हों, पढ़े लिखे हों, दुनिया के बारे में अवेयर हो, अपने जॉब के बारे में और चीजों के बारे में अवेयर हो। तो आर्मी वॉर कॉलेज में हम स्कॉलर वॉरियर्स, सभी जगह स्कॉलर वॉरियर है, लेकिन आर्मी वॉर कॉलेज में एकेडमिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान होता है, पढ़ाई के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान होता है, और बहुत एक अलग लेवल की वहां पर ट्रेनिंग कराई जाती है, बहुत सीनियर ऑफिसर्स। और आप ये देखेंगे कि इन्फेंट्री स्कूल का मैंडेट अलग है, आईएमए का मैंडेट अलग है, वॉर कॉलेज का मैंडेट अलग है। तो इट वाज अ प्रिविलेज फॉर मी टू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दीज 3 प्रेस्टिजियस एस्टैब्लिशमेंट्स। और अगर अच्छे सबसे मेरे टेन्योर माने जाएंगे तो तीनों टेन्योर को मैं बहुत अच्छा रेट करता हूँ एज फार एज लर्निंग इज कंसर्न। अगर लड़ाई के उसमें देखा जाए तो मैंने 3 बड़े बड़े फील्ड टेन्योर किए, कुपवाड़ा में किया, सियाचिन ग्लेशियर पे किया, और मणिपुर में बटालियन कमांड की। Yes, sir. और यूनाइटेड नेशंस रहा तो वो लड़ाई का जो माहौल है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर लड़ाई है या टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशंस हैं, तो और ग्लेशियर पे दुश्मन के साथ जो चल रहा है जो भी कार्रवाई, Yes. वो एक प्रोफेशनली बड़ा सेटिस्फाइंग है। तो आप देखेंगे कि 25 साल में टोटल 11 अलग अलग जगह पर मैंने सर्व किया, और हर जगह पर कुछ ना कुछ नया सीखा। जितना मेरी क्षमता थी उतना मैंने कंट्रीब्यूट किया, और इतना जो आर्मी के जो सेटिस्फाइंग करियर होता है वो आप देख सकते हैं अगर प्रोफाइल पढ़ेंगे, और किसी भी मेरे रैंक और सर्विस के किसी ऑफिसर की प्रोफाइल देखेंगे वो ऐसे ही होगी, साफ होगा, उसमें इंस्ट्रक्शन टेन्योर होगा, उसमें ऑपरेशन टेन्योर होगा। तो ये एक चीज मैं अपने लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आर्मी में कोई भी 2 दिन एक जैसे नहीं होते। जैसे अगर आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर लगते हैं तो आप 1 दिन गए, 2 दिन गए, आपका रूटीन अगले 20 साल तक बहुत ज्यादा बदली नहीं होगा, उसमें चेंजेस हो गए, नए बच्चे आते हैं, लेकिन आप जनरली एक जैसा काम करते हैं, आपका रैंक बढ़ जाएगा, आपको प्रमोशन हो जाएगा। आर्मी में सबसे अच्छी चीज ये है कि आप आज यहाँ हैं, कल कहीं और होंगे, परसों कहीं और होंगे, 1 साल बाद आपका रोल ही चेंज हो गया होगा। तो लाइफ Yes, बहुत sir. इंटरेस्टिंग होती है, और आपको जीने को और मरने को बहुत नजदीक से देखने का मौका मिलता है, Yes, जो sir. शायद किसी और जॉब के अंदर इतना नजदीक से देखने का मौका नहीं मिलता है। तो इट इज वेरी सेटिस्फाइंग करियर दैट वन गेट्स इन द आर्म फोर्सेस। Yes, sir. सर, और सर जब जो रिस्पेक्टेड सर बिपिन रावत सर हैं, जो सर जब भी वो जनरल थे तब सर उनका स्टेटमेंट आया था कि सर जो लोग पैसे के लिए अगर आर्मी में जाना चाहते हैं तो सर उनको नहीं जाना चाहिए, बिकॉज if you want to join the Indian Armed Forces then you should be having a tough mindset, and the work there is very hard, sir, so you have to push harder every day. तो सर जो लोग ऐसा सोचते हैं सर, तो उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए सर आर्मी में, जो सर पैसे के लिए जाते हैं कि सर क्योंकि वहाँ पे अब सैलरी। नहीं, अभी 2-3 चीजें हैं। एक तो आपने जनरल बिपिन रावत को कोट किया, तो उसके बाद कर्नल अमरदीप के स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं रहती है। जो जनरल साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है। कई लोग कहते हैं कि आर्मी कोई नौकरी है या कोई सर्विस है। यस सर। मेरा ये मानना है, जो जनरल रावत ने जो स्टेटमेंट दिया है बिल्कुल सही कहा है कि आर्मी इज पैशन। अगर आपके दिल में जज्बा है चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का, यस सर। देश सेवा तो सभी कर रहे हैं। जो बस का कंडक्टर है, जो स्वीपर है, जो पानी का टैंक गाड़ी चला रहा है, जो बस का ड्राइवर है, ट्रेन का ड्राइवर, सभी देश सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हर आदमी अपना काम करे वही देश सेवा। सोल्जर्स की जो देश सेवा है थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि वो दुश्मन से लड़ने गए, उनका वो काम है, और वहां पर जैसा मैंने बताया शायद आपको जान देने की भी जरूरत पड़ेगी। Yes, तो अगर sir. आप केवल ये करके आते हैं कि आर्मी तो नौकरी है, मैं कर लूंगा, हो जाएगा, पैसे मिलेंगे, तो वो फिर गलत वो तरीका है सोचने का। आपको सैक्रिफाइसेस दूसरे प्रोफेशंस की बनिस्बत ज्यादा करने पड़ते हैं। मैं नहीं कह रहा कि दूसरे प्रोफेशन में सैक्रिफाइस नहीं है, सब प्रोफेशन में कुछ ना कुछ चीजें आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। पुलिस अलग करती है, बीएसएफ, सीआरपीएफ है, अलग तरीके के सैक्रिफाइसेस हैं सब। और जो यूनिफॉर्म पहने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं या पुलिस है और आर्म फोर्सेज हैं, इनका क्या है, सैक्रिफाइस एक बहुत अलग तरीके का होता है। तो जो जनरल साहब का जो स्टेटमेंट है कि अगर आपने पैसा कमाना है तो शायद आर्मी आपका सही डेस्टिनेशन नहीं है। Yes, पैसा sir. कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। आप फाइनेंशियल सेक्टर में जाएं, आप बैंकिंग में जाएं, आप डॉक्टर बने, और आप देश सेवा भी करें, समाज सेवा भी करें, उसके साथ
थोड़ा सा शायद पैसा ज्यादा है, बजाय कि अगर आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि आर्मी की सैलरी खराब है, तो हमारे जवान हैं उनकी सैलरी अभी बहुत अच्छी हो गई है 7th पे कमीशन के बाद। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि यार 50,000 पे ले लो और अपनी जान दे दो, तो शायद आप 2 बार ही सोचो। यस सर। लेकिन हमारा जवान ऐसा नहीं सोचता, वो शायद सैलरी के लिए नहीं आया है, उसे लगा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। गाँव में कई में ट्रेडिशन होती है, कईयों के पिताजी फौजी हों, कहते नहीं मेरा बेटा फौज में जाएगा। बहुत ऐसी लोग भी हैं फौज के अंदर। और मेरा भी यही मानना है कि अगर आपको लगता है कि सर मुझे बहुत अच्छी लाइफ जीनी है, मुझे ऐश करनी है, आर्मी में बहुत अच्छे मौके हैं ऐश करने के, सब कुछ करने के, लेकिन हमेशा नहीं होगा। अब ग्लेशियर पे मैं था, -50 डिग्री सेल्सियस पे रह रहा था, और वहां पर एक लालटेन होती थी, बस हमारे पास एक दिया होता था, वो जल के लाइट थी, कोई बुखारी नहीं थी, कुछ नहीं था, और दिन रात दुश्मन की गोलियां चलती थी, गोले चलते थे। वो शायद लाइफ, अगर आप दिल्ली में किसी मॉल में घूम रहे हैं, तो आपको सोच भी नहीं सकते कि ऐसी भी लाइफ हमारे देश के कोई नागरिक जी रहे। सो जैसे आप एनसीसी में, एनसीसी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूथ को मोटिवेट करने का, आर्म फोर्सेस के लिए तैयार करने का। नॉट ओनली आर्म फोर्सेस, आजकल आप देखेंगे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, असम राइफल्स है, कोस्ट गार्ड है, ये सब भी देश की रक्षा में अपना अपना रोल निभा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट इनका योगदान है। लेकिन आप इनमें से कोई भी फोर्स ज्वाइन करते हैं, आपको लगेगा कि नॉर्मल बैंकिंग जॉब या नॉर्मल जो जॉब्स हैं उनसे हटके है, तो उनसे हटके होने के लिए आपको भी थोड़ा हटके होना पड़ेगा। अगर नॉर्मल माइंडसेट है कि मैं एक नौकरी लग गया, पे आएगी, फिर मैं ऑफिस जाऊंगा, आर्मी में ऐसा शायद नहीं है, बहुत लाइफ अलग तरीके की। यस सर। सर क्लियर है भाई? आंसर योर क्वेश्चन? या सर अंदर से सर मोटिवेशन होना चाहिए सर, जब तक अपन मोटिवेट नहीं होते तो सर आर्मी में फिर नहीं जा सकते सर, जब तक कि। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोटिवेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और मोटिवेशन के बेस पे ही लोग काम करते हैं। और कई हैं हमारे जवान घायल हो जाते हैं, कारगिल युद्ध के बाद देखा कितने के हाथ पैर कट गए, कईयों की जान चली गई। अभी सीआईए ऑफिसर देखिए कैसे कैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो केवल पैसे के लिए शायद अगर आप ये करना चाहे तो कोई नहीं करे, तो जब तक अंदर से आप में जज्बा नहीं है तो फिर आप सही जस्टिस नहीं कर पाएंगे। यस या So, sir, my next question to you is that, sir, as I told in the beginning only, that you were responsible for training and mentoring officer cadets and officers from all the 3 services of armed forces, paramilitary academy, central police organizations, as well as officers from a host of friendly foreign countries. So how you used to train them, and what were the differences in training cadets of all these 3 different services? See, when I was in IMA के अंदर you have cadets from the friendly foreign countries, जिनके साथ भी हमारे देश के ऐसे अंडरस्टैंडिंग है और MOUs हैं। अफ्रीकन नेशन से आते हैं, सेंट्रल एशियन रीजन से कई नेशन से, उज्बेकिस्तान से लोग आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, अफ्रीकन कंट्री से आते हैं। हमारे साथ जब हम कैडेट थे तो अफ्रीकन कंट्री से बहुत कैडेट्स आते थे। Sir, you are की आवश्यकता पड़ती है। सो यस, कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज बैरियर होता है, ये बहुत बड़ा चीज आती है। yes sir. लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एवरीबडी दे लर्न हिंदी, दे लर्न इंग्लिश, इंग्लिश में सब बातचीत कर पाते हैं। और फिजिकल स्टैंडर्ड में कई चीजें हैं जहाँ पर फॉरेन फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के लोग, भूटान के लोग, नेपाली ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे आते थे, तो दे आर इक्वली गुड और इवन बेटर इन सो मेनी डोमेन्स। इट इज गुड लर्निंग, वी गेट टू लर्न। श्रीलंकन्स के साथ इन्फेंट्री स्कूल में था तो श्रीलंकन्स बहुत थे, उनको ट्रेन ये रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग देम। यस, डिफरेंसेस आर देयर, उनका जो काम करने का तरीका है, कई देश हैं उनका कोई दुश्मनी नहीं है उनके लिए, लेकिन मिलिट्री इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल काइंड ऑफ जॉब। क्लियर? सो फर्स्टली इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, यू गेट टू अडैप्ट। मैंने एक श्रीलंकन ऑफिसर्स का लेक्चर लिया तो 40% ऑफ देम न्यू इंग्लिश एंड 60% जो थे, 100 में से 60 को इंग्लिश नहीं आती थी। आई हैड टू यूज एन इंटरप्रेटर। तो मेरा जो 2 घंटे का लेक्चर था 4 घंटे में खत्म हुआ, बिकॉज जो भी मैं बोल रहा था उसको ट्रांसलेट करना पड़ता। यस सर। लेकिन श्रीलंकन आर्मी भी आप देखेंगे तो बहुत ही बैटल हार्डन्ड आर्मी है। LTT के साथ जब उन्होंने लड़ाई करी है और अपने उसको प्रोटेक्ट किया है, तो
उनका जो एक्सपीरियंसेस थे शायद कई हमारे ऑफिसर्स थे उनसे ज्यादा उनको एक्सपीरियंस था। हम उनसे बहुत सीखते थे। वो अपनी कंट्री की प्रेजेंटेशन देते हैं, वो अपनी आर्मी के बारे में बताते हैं, अपने ऑपरेशंस के बारे में बताते हैं, तो हमें भी सीखने का मौका मिलता है। सिमिलरली नेपाल है, भूटान है, सेंट्रल एशियन रीजन है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, तो ये एक प्लेटफॉर्म है दूसरे देश के बारे में जानने का, दूसरे कल्चर के बारे में जानने का और अपने को अपग्रेड करने का। अब जब वॉर कॉलेज में था तो मैं जो कोर्स जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल था उसमें नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स आते थे। सो अभी हम जैसे आर्मी में है तो हमारी अंडरस्टैंडिंग एट कर्नल्स लेवल नेवी और एयरफोर्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला उन सब के बारे में जानने का, उनके काम करने के तरीके के बारे में जानने का। और जब आप हायर कमांड करते हैं तो हायर कमांड में तीनों सर्विसेज, स्टाफ कॉलेज कोर्स है, वहां पर तीनों सर्विसेज से आते हैं लोग, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से। सो आर्म फोर्सेज में इस प्रकार से जॉइंटनेस का माहौल है। दूसरे देशों के साथ हम अभी एक्सरसाइजेस करते हैं, रशिया के साथ एक्सरसाइज करेंगे, यूएस आर्मी के साथ एक्सरसाइज करेंगे। सो देखिए कि अच्छाई और बुराई दुनिया में दो चीजें। तो जो गवर्नमेंट की जो फोर्सेज है, हम मानते हैं कि हम अच्छाई को रिप्रेजेंट करते हैं और हमें मिलके बुराई को लड़ना पड़ेगा, चाहे टेररिज्म है, चाहे नार्को टेररिज्म है, चाहे और बहुत अलग अलग विसंगतियां हैं वर्ल्ड में। तो जो दूसरे देशों के साथ हम काम करते हैं तो लर्निंग होती है, कोऑपरेशन बढ़ता है और हमें उनके बारे में जानने का मौका मिलता है। ट्रेनिंग देते समय मुश्किलें आती हैं, लैंग्वेज के बैरियर्स आते हैं, अंडरस्टैंडिंग के बैरियर्स आते हैं, उनके कल्चर के बैरियर्स आते हैं। हमारे जैसे अपने कैडेट होंगे, बड़े डिसिप्लिन होते हैं। कोई बाहर से कैडेट आया, वो शायद उसमें हमें लगेगा कोई डिसिप्लिन नहीं है, वो है डिसिप्लिन है, लेकिन वो डिसिप्लिन की हमारी डेफिनेशन से थोड़ा सा अलग है। अब वो बट धीरे धीरे करके मिलिट्री ट्रेनिंग ऐसी होती है कि सब लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं और बहुत एक अच्छा माहौल होता है। तो जब हम बोलते हैं ग्लोबल एक विलेज है, एक दुनिया, एक पूरा वैश्विक गांव हो गया है, तो उस समय ये जो फॉरेन ऑफिसर्स आते हैं, उनके आर्मी के साथ हम ट्रेन करते हैं, उसका बड़ा फायदा होता है। फिर मेरी बटालियन यूनाइटेड नेशंस मिशन में थी अफ्रीका में, और वहां पर अगर देखा जाए तो एक साल में 70 अलग अलग देशों के कंटिजेंट्स के साथ, ऑफिसर्स के साथ, जवानों के साथ हमें काम करने का मौका मिला। आते जाते रहते लोग, जैसे यूएस आर्मी का कोई एक ऑफिसर है, पाकिस्तान आर्मी का भी एक ऑफिसर था, ऐसे दो तीन अलग अलग आर्मीज के तीन बड़े बड़े कंटिजेंट से। इटली की पुलिस थी, कैराबिनरी, हेलीकॉप्टर्स रशिया के थे। सो आप देखिए कि कितने यूनाइटेड नेशंस आपको कितना बड़ा एक्सपोजर देते हैं। उस समय जब आप फॉरेन कंट्रीज के बारे में जानते हैं तो वहां जाके आप अपने देश को और भी उनका नाम ऊंचा कर सकते हैं अच्छे से काम करके। और बहुत लोग हमसे बहुत कुछ सीख के गए वहां से। इंडियन आर्मी जैसे काम करती है वैसे शायद ही दुनिया की कोई और आर्मी काम करती हो। Yes. जो हमारी काम करने का इथॉस है, वो भी हमसे अच्छी बातें सीखते हैं, हमने उनकी अच्छी बातें उनसे सीखी। तो इट्स अ वेरी एनरिचिंग काइंड ऑफ एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। या So, sir, as I told in your introduction also that you are having 5 books to your credit. So, and you have been also awarded with Army Commander Scholar Warrior for your research papers in 2017. So, when anyone gets this award, so sir, how you got this award, sir? What was your achievement? Okay, I'll tell you 5 books. I am basically a hello. Yes, So sir. 4 books are collection of Hindi poems, and 2 of them are available on Amazon even now. I write a column for a newspaper for the last 4 years. So Yes, that sir. first year's column I have compiled in a book called Musafirnama. So you can read that. Social media platforms, people can go there and read. And as far as awards are concerned, so best award that I got was the Sena Medal that I got during Manipur tenure. Yes, sir. It is Sena Medal for Distinguished Service. So it's a very prestigious award. That is one. Yes, so sir. entire battalion worked very hard, and battalion got 47 gallantry awards. We got the Army Chief's unit citation, and my predecessor and myself, we got Sena Medal Distinguished Service. And the Scholar Warrior badge, I have written a paper on training of infantry battalion, because जब आप काम कर रहे होते हैं, अपने प्रोफेशन के बारे में जानते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो अच्छी चीजें सीखी हैं, जो कोई नया फ्रेश थॉट है, आप उसको रिकॉर्ड करें, आप उसको लिखें, ताकि आने वाली जनरेशन से उसका फायदा उठा सके. So that paper was shortlisted
इन आर्मी ट्रेनिंग कमांड, आरट्रैक बोलते हैं उसको। और वहां पर फिर आर्मी कमांडर हर साल 20 से 25 लोगों को ये स्कॉलर वॉरियर बैच मिलता है। सो आई हैव बीन द रेसिपिएंट ऑफ अ स्कॉलर वॉरियर बैच इन 2017। एंड ठीक है, आप एक स्कॉलर वॉरियर हैं, आप सोचते हैं, लड़ते हैं, पढ़ते हैं, ये सारे काम इकट्ठे करने पड़ते हैं। एंड आर्मी में बड़ा फेयर प्ले है, आपके टैलेंट की रिस्पेक्ट होती है, आपकी मेरिट की रिस्पेक्ट होती है। Yes, एंड sir. अगर आप अच्छा काम करें तो आपको अवार्ड मिलेगा। सो उसी लाइन में मिला। बहुत अच्छे हमारे ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, जीसीओज हैं, जो बड़े बड़े गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं, मल्टीपल गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं वो, और उनको अपने ऑपरेशनल उसके लिए मिला है। ऐसे ही पढ़ाई लिखाई के लिए स्कॉलर वॉरियर बैच है, सेवा मेडल हैं, आपके अच्छे काम के लिए विशिष्ट सेवा मेडल वगैरह चीजें हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका होता है। जैसे पुलिस में पुलिस मेडल मिलता है, प्रेसिडेंट मेडल मिलता है, Yes, तो sir. हर ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीका है। अपने जो अच्छे काम कर रहे हैं, जिनका थोड़ा सा अलग है, हटके है, एक्सेप्शनल कोई कंट्रीब्यूशन है, तो these are all normal things. Lot of people get Sena medals because I find everybody who is doing his job sincerely is doing it deserves an award. Reason is nobody else does it with sincerity. बाकी पूरे देश में शायद हम उतनी सिंसियरिटी नहीं ला पाए हैं, लेकिन जितने भी यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं, मुझे बताते हुए खुशी होती है, सुनकर भी अच्छा लगता है कि आप बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, आप अपना काम अच्छे तरीके से करते हैं। इट्स अ मैटर Yes, ऑफ sir. प्राइड एंड वी टेक प्राइड इन डूइंग दैट। या Okay, so sir, now you are also doing the work of mentoring the cadets for Indian Armed Forces through your academy, The Winning Edge. So, sir, tell us Yeah. something about it, sir. How it works? See, the Winning Edge is located at Dehradun. It is a 1-year-old academy, and we are only officers. We are 6 officers here in the academy. Yes, sir. And abhi the batches are online. So in case candidates are preparing for written exam, all kinds of officer entries, including Central Armed Police Forces, so we take care of that. And we also take care of the SSB interview. And recently in the FCAT exam, 2 candidates have cleared the FCAT exam out of 3. Yes, So out of 5 candidates, 2 have been recommended in SSB. So such like things will come your way. But we are now able to conduct our classes online. So anybody who is interested should contact me or can contact me. I'm sure you will share my number with the interested people. Yes, sir. And I would like to share that we are also coming up with an app, my company's app. It will be out in a month's time. Okay. And through that app, you can access all the material at a very, very nominal cost. Say if you are Yes, sir. preparing for NDA, otherwise for an year's mentoring, you will end up spend something like 1 lakh rupees or less than that. But I want to subsidize it to 1,000 or 1,000 plus. That is all that we'll charge. Yes, And we'll give you all kind of tests, all kind of study material through this app. So I am looking forward to developing that so that more and more people, young boys and girls, can benefit that. sir, that Winning will Edge be is special in one way, yeah. So Sir. I'll share that details with you as and when we are online. yes, sir. But we also provide free coaching to the wards of our war widows. Yes, sir. People, boys and girls whose father has laid down their life in the line of duty, or who is a physical casualty who has died. We don't charge any money from them. And only we are this thing कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो आप डबल फीस देके जाना, लेकिन जब तक सेलेक्ट नहीं होते हम आपसे कुछ चार्ज नहीं करेंगे, ताकि ये मेरा तरीका है पे बैक करने का। आर्म फोर्सेस के जो जवान हैं, जब वो एसीसी के लिए आते हैं तो उनको 50% डिस्काउंट हम देते हैं अपने पैकेजेस में। फ्री नहीं करना चाहते हैं क्योंकि फ्री वाली चीज की वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अपनी तरफ से जो हम करना चाहते हैं देश के लिए, अपने जवानों के लिए, वो हम कर रहे हैं। और वॉर विडोज के जो बच्चे हैं, हर बैच में 2 सीट्स उनके लिए रिजर्व है। ये नहीं है कि हर किसी को ले लेंगे, आपको एकेडमिक में 70% से ऊपर स्कोर करना है, तब जाके हम आपको एनडीए के लिए लेंगे और फिर फ्री कोचिंग कराएंगे। अच्छी बात यह है कि सारे ऑफिसर्स हैं और हमारे इस वेंचर का जो एम है, थोड़ा पैसा पक्का कमाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा कमाना नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी एक्सपर्टीज को ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सकें और ज्यादा से ज्यादा दूर दूर तक लोग उससे पहुंच सके। तो जब ये ऐप आ जाती है, मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगा। Yes, sir. और एसएसबी की ट्रेनिंग का जो अभी कल हम उसका डेवलप करना शुरू कर रहे हैं, सो शायद जीटीओ का पैक अब 99 रुपीज में पूरा पैक अटेंड कर पाएंगे, जो कि शायद 5-6 हजार रुपए में अभी आप स्पेंड करते हैं। Yes, तो मैं sir. चाहता हूं कि पूरा एसएसबी आप 399 या 499 रुपीज, इसमें पूरी ट्रेनिंग
जनरल्स के लेक्चर्स, कर्नल्स के लेक्चर्स, ब्रिगेडियर्स के लेक्चर्स, इतने हम सब्सिडाइज करके उस ऐप के थ्रू अवेलेबल कराएं। सर बहुत अच्छा लगता है सर सुन के कि जब आपके जैसे ऑफिसर सर रिटायर हो गए आप, फिर उसके बाद भी लेकिन सर आप इतना कुछ काम कर रहे हैं सर दूसरे बच्चों के लिए। नहीं, मेरा मानना है कि हमें सबको समाज को कुछ ना कुछ वापस देना चाहिए। यस सर। आप अगर सफाई कर सकते हैं अपने इलाके की, सफाई करिए। आप पेड़ लगा सकते हैं, पेड़ लगाइए। आप गाड़ी ट्रैफिक के नियमों का पालन करिए, वो सब समाज की भलाई के लिए काम आते हैं। अगर आप किसी असमर्थ की सहायता कर सकते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार पक्का करिए। अगर आपके 10 रुपए स्पेयर है तो 10 रुपए किसी पर खर्च करो। अगर आप 1 लाख रुपए स्पेयर कर सकते हैं, 1 लाख करो। Yes, जो sir. आपकी हैसियत है उसके हिसाब से किसी ना किसी को ले। जो स्कूल के बच्चे हैं, आप एनसीसी कैडेट्स हैं, आप हर दिन नहीं तो हफ्ते में 1 दिन छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। किसी जरूरतमंद को फ्री ट्यूशन दे सकते हैं, और किसी मेरे पास रेफर कर सकते हैं कि सर ये अच्छा लड़का है लेकिन शायद ये 9-10 हजार रुपये नहीं दे सकता है। तो हम हमारी टीम पक्का एग्री करती है कि एक बैच में जहाँ 10 बच्चे पढ़ रहे हैं वहां हम 11 को पढ़ा लेंगे। तो हमारी तरफ से जो बन पड़ेगा वो करेंगे। लेकिन Yes, मैं sir. अपील करना चाहता हूँ सभी लिसनर्स को, जब बॉय स्काउट हम होते थे तो हमें सिखाया गया कि दिन में एक अच्छा काम अवश्य करना है। तो Yes, मैं sir. चाहूंगा कि इस इंटरव्यू को सुनने वाले एक अच्छा काम दिन में रोज करें। आप पेड़ लगाएं, पेड़ को पानी दें, किसी गरीब को खाना खिलाएं। आपके पास जो स्पेयर कपड़े हैं आप नहीं पहनते, किसी जरूरतमंद को दें। और शायद रिक्शे वाले से मोल भाव ना करें, 5 रुपए के लिए सब्जी वाले से लड़ाई ना करें। Yes, वो भी शायद अच्छा काम है। आपको 5 रुपए में तो ठीक है 2-3 MB डेटा एक्स्ट्रा आएगा, लेकिन वो जो गरीब आदमी है वो शायद उस दिन 1 रोटी एक्स्ट्रा खा पाएगा, अच्छा लगेगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हमें अपने देश की कमान संभालनी है। वो Yes, कैसे sir. संभालेंगे? आपके जो छोटे हैं, आपसे छोटे लोग हैं, उनको सही रास्ता दिखाएं। केवल बात करने से नहीं होगा, आप काम करो। Yes, sir. अगर आप रेड लाइट पे रुक रहे हैं तो बाकी लोग भी रुकेंगे। अगर आप तेज गाड़ी नहीं चला रहे तो बाकी भी नहीं चलाएंगे। अगर आप बिना बात के हॉर्न नहीं बजा रहे हैं, अगर कोई बीमार है आपके पड़ोस में, आप जोर जोर से म्यूजिक नहीं सुनेंगे, ईयरफोन लगा के सुनेंगे, ये सब भी अच्छे काम है। लेकिन बड़ों की रिस्पेक्ट करना, उनकी मदद करना। अगर कोई बहुत बूढ़ा व्यक्ति लाइन में आपके पीछे, आप बोले अंकल आप आगे चल रहे हो, मैं पीछे चल जाऊंगा, मैं बाद में ले लूँ, तो ये शायद, हम तो आजकल हर जगह पहले पहुंचने के लिए आगे भाग रहे होते हैं। Yes, तो sir. हमें थोड़ा सा स्लो डाउन होना है, अपने माइंडसेट को चेंज करना है, और जो आने वाली पीढ़ी है उनको गाइड करना है। उनको कोई गलत काम कर रहा है उसको रोकना है। अगर किसी लड़की के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, आप 4 लड़के खड़े हैं, तो आप उस 5वां जो नमूना उसको रोकिए। अगर आपका कोई दोस्त ऐसे काम कर रहा है तो उसको रोकिए, समझाइए। और बहुत ज्यादा होता है तो फिर ऊंचे वाले किसी अधिकारी को रिपोर्ट करें, पुलिस में रिपोर्ट करें। तो अगर समाज अपनी जिम्मेदारी लेगा तभी समाज बदलेगा। पुलिस, आर्मी, Yes, सरकार एक लेवल तक आपके साथ काम कर सकती है, लेकिन जो आम नागरिक है उसको अपनी जिम्मेदारी समझना पड़ेगा और समाज की जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। Okay. So, sir. क्लियर? Yes, sir. 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 Clear, sir. Okay, sir. So that was all from my side. And sir, again, sir, thank you so much for coming to our channel for an interview, sir. And this interview is going to help, sir, many defense aspirants as well as those who are urging to learn something new, sir. And sir, again, sir, thank you for coming to our channel. Great. What you can do is you can share my details or email ID, and in Yes, case sir. somebody wants to get in touch, they can get in touch with me. And I wish all the listeners the very best of luck. Again, hard work तो करना ही पड़ेगा। Yes, और sir. जो यंग जनरेशन है उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास चॉइस है। ये 4-5 साल आप हार्ड वर्क करें और सारी लाइफ उस हार्ड वर्क का फल खाएं, या अभी मजे करें और फिर पूरी लाइफ तंग रहें। तो Yes, sir. इसके में कोई शॉर्टकट नहीं है। Yes, तो sir. मैं चाहूंगा कि सब लोग हार्ड वर्क करें और देश के बारे में, अपने समाज के बारे में जो भी मैंने 2-3 बातें बताई उन पर विचार अवश्य करें और धीरे धीरे उसका पालन करें। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस इंटरव्यू, एंड जय हिंद टू एवरीवन। Yes, sir. Jai Hind, sir. Jai Hind. बाय। Bye, sir.